Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. This is your science teacher Mansha and today we will revise the chapter number 1 of biology, that is nutrition in plants. Okay students, today we will revise chapter number 1 of biology, that is nutrition in plants. Before starting this chapter, I will make you familiar with the term plants. As students, you have earlier studied about these terms in your earlier classes also. What are plants? A very simple question. Plants are living organisms which prepare their food themselves by the process of photosynthesis. I repeat it. Plants are living organisms which prepare their food by the process of photosynthesis. बेटा plants क्या होते हैं? Plants जो होते हैं living organisms होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं by the process of photosynthesis, जैसे आप earlier classes में भी पढ़ चुके हैं. Before starting my lecture, I will come to a mystery question for you. Okay, I will tell you a story, students. Once there was a lion living in a jungle. Once there was a lion living in a jungle and he used to live very happily there. But a tragedy struck in the forest. Okay, a tragedy struck in the jungle he was living. It was living कि वहाँ पे जितने भी trees थे, all the trees are died. सभी trees क्या है damage हो गए, die हो गए. तो क्या हुआ? After some time, the lion also died. तो कुछ time बाद lion भी मर गया. ठीक है, this is the mystery question for you. So you all will think about this question and I will come to the solution of this mystery question after the completion or at the end of my video lecture. Okay, now let me start with the topic, students. Nutrition in plants. First, I will make you familiar with the term nutrition. What is nutrition? Okay. जैसे चैप्टर के नाम में भी आपको स्पेसिफाई हो रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. वी आर क्लियर विद द प्लांट्स, नाउ वी विल क्लियर विद द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization in its body to obtain energy. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization in its body to obtain energy. Nutrition का मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी में हम फूड को लेते हैं, उस फूड को हम बॉडी में यूटिलाइज करते हैं और उस फूड से हमें जब एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस. ठीक है, न्यूट्रिशन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. एज यू नो, अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी अपनी लाइफ एक्टिविटी को कैरी नहीं कर सकते. तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. Number 1, autotrophic mode of nutrition. There are two modes of nutrition. Number 1, autotrophic mode of nutrition, or we can say autotrophic nutrition, and other is heterotrophic mode of nutrition, or we can simply say it as heterotrophic nutrition. Okay students, so what is the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? क्या difference होता है autotrophic nutrition और heterotrophic nutrition में? सबसे पहले बात करेंगे हम autotrophic nutrition. अगर हम autotrophic nutrition की बात करें तो this autotrophic word can be split up into two words, auto and tropic. Okay, auto and tropic. Auto means self and tropic means nourishment. Auto means self and topic means nourishment, means self nourishment. तो यहाँ पे बात करेंगे हम autotrophic nutrition की. Autotrophic nutrition क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है. ऑर्गेनिज्म prepare as food by itself. Okay students, तो यहाँ पे जो हमारा autotrophic mode of nutrition का जो मेन एग्जाम्पल है वो है हमारा प्लांट्स. ये जो प्लांट्स होते हैं इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, एज यू नो, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो बेटा नाउ आई विल कम ऑन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के बारे में आप यू हैव एन आइडिया, यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस ऑल्सो. लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ इट. ठीक है, नाउ वी विल गो विद फोटोसिंथेसिस.
बेसिकली बेटा फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस है जिससे क्या है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस। ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपल सब्सटेंसेस, तो ये सिंपल सब्सटेंसेस कौन से हैं? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, number 2 water, number 3 we can say minerals or nutrients, and number 4 is chlorophyll, and last but not the least is sunlight. And these are also the basic requirement for photosynthesis. ये जो है basic raw materials हैं photosynthesis के, these are carbon dioxide, water, nutrients, chlorophyll and sunlight. बेटा now I will make you clear कि ये जो हमारी requirement है ये कैसे complete होती है और कहाँ से हमें ये requirement मिलती है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से मिलती है। ऐसे आपको पता है 0.03% ऑफ एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एयर। ओके, सो प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एयर। अब बात करेंगे हम वाटर की। आपको पता है हम प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्लांट्स होता है इट गेट्स वाटर फ्रॉम इट्स सॉइल। ओके, उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उन्हें मिनरल और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? जो प्लांट्स को मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी सॉइल से ऑब्टेन्ड होते हैं। एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बात करें तो व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स। जो क्लोरोफिल होती है वो क्या होती है? ग्रीन पिगमेंट होती है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। जैसे आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और जो ग्रीन पिगमेंट होती है उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। एंड दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। सो क्लोरोफिल इज द green pigment of plants. Now sunlight, very clear about it. Where do we get sunlight? We get sunlight from sun. Okay, so these are 5 basic requirements for the process of photosynthesis. अब how do plants carry photosynthesis? Plants जो होते हैं photosynthesis को कैसे carry करते हैं? Okay, तो हमारे लिए इसको understand करने के लिए एक simple सी equation है that I will write. That is carbon dioxide plus water gives us carbohydrate plus oxygen, and this reaction occur in the presence of chlorophyll and sunlight. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करें तो दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में जो सब्सटेंस फॉर्म करते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के बाद ऑब्टेन्ड हो रहा है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। यू हैव स्टडीड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। ओके, एंड बस साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो आई विल रिपीट फॉर यू। Plants take carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight they form a compound named carbohydrate and side by side oxygen gas is released. ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है ये कहाँ पे जाके स्टोर होता है? मेनली जितना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये प्लांट्स की लीफ सेक्शन में जाके स्टोर होते हैं। ओके, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वहाँ पे फूड स्टोर होता है, वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड स्टोर होता है और वहाँ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, एंड you know very well that this is very essential process because अगर हमारे ऑटोट्रॉप्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। तो प्लांट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, now we will talk about
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अभी तक हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक का मेन एग्जांपल हमारा क्या है? प्लांट्स। और जहाँ पे बात करेंगे वहाँ पे हम बात करेंगे ग्रीन प्लांट्स की। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेटा, व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रो मीन्स, नाउ हेट्रोट्रॉपिक को भी हम दो वर्ड्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं, हेट्रो एंड ट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स others, tropic means nourishment, means those organisms which depend on others to obtain food or to get nourishment। तो heterotrophs क्या होते हैं? और उन organisms को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो जहाँ तक हेट्रोट्रॉप वर्ड की बात आते हैं, हम ज़्यादातर एनिमल्स की बात करते हैं, लेकिन नो स्टूडेंट्स, प्लांट्स कैन ऑल्सो बी हेट्रोट्रॉप्स। प्लांट्स भी जो है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, लेकिन सभी प्लांट्स नहीं फॉलो करते। मोस्टली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। नंबर 1 कैटेगरी है हमारी सेप्रोफिटिक। नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं हमारे सेप्रोफिटिक प्लांट्स, और सेकंड होते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Saprophytic plants, insectivorous plants. Number 3 is symbiotic plants, and last is parasitic plants. Parasitic plants. So these are 4 type of heterotrophs or plants come under heterotrophic nutrition: saprophytic plants, insectivorous plants, symbiotic plants and parasitic plants. So let me explain this one by one. First of all, I will explain about saprophytic plants. Listen carefully students. Saprophytic plants, जैसे कि हम earlier इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, हम इन सबको फटाफट से रिकॉल करेंगे अपनी रिवीजन क्लास में। saprophytic plants ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। मतलब क्या होता है कि ये जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकेइंग चीज़ों को फीड करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फंगी, मशरूम एंड ईस्ट एटसेट्रा। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करके अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी कैरी कर रहे हैं। मतलब ये है जो ग्रीन कलर के हैं और अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन उनमें जो है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और ये अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी विच इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर प्लांट, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। ओके, या वी कैन से दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं या इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विच कंज्यूम इंसेक्ट्स, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल्स आर sundew, pitcher plant, etc. Okay, these are example of insectivorous plant. Now we will talk about symbiotic plants. Symbiotic plants कैसे होते हैं बेटा? Symbiosis नाम से ही पता चल रहा है, जिनमें क्या है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, दो कैटेगरी है प्लांट्स की जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। मतलब क्या है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करके अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं या अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, दे आर शेयरिंग द थिंग्स, तो यहाँ पे भी जो रिलेशन है वो शेयरिंग की तरह है। दो ऑर्गेनिज्म शेयरिंग करके अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट example we will take about lichens.
बेटा lichen इज ए प्लांट, ओके। lichen में क्या होता है, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है एल्गा और एक होता है फंगस, ठीक है। जो एल्गा होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, वो फोटोसिंथेसिस को कैरी करके अपना फूड बनाता है। लेकिन क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फंगस की। उसी तरह जो फंगस होता है, ठीक है, फंगस जो होता है एल्गा को वो वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ एल्गा जो होता है फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो एल्गा और फंगस है लिचन्स में, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस तरह के रिलेशन को बोलते हैं symbiotic relationship, or this is happen in symbiotic plants, okay. So such a relation is known as symbiotic relationship, okay students. Let's take another example. Now I will take the example of rhizobium bacteria which is present in leguminous plant like pea, beans. जो हमारे leguminous plants होते हैं उनकी roots में एक बैक्टीरिया होता है स्पेशल टाइप का जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ओके बेटा। मेन फंक्शन क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। लेगुमिनियस प्लांट डिपेंड ऑन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन लेगुमिनियस प्लांट। हाउ स्टूडेंट्स, ओके। जो हमारे लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की कमी होती है, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रोइड्स की फॉर्म में, सिंपल सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लेगुमिनियस प्लांट को प्रोवाइड करता है, ओके। और साथ ही साथ जो हमारे लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे क्या है, सो राइजोबियम बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन लेगुमिनियस प्लांट्स एंड लेगुमिनियस प्लांट्स डिपेंड्स ऑन राइजोबियम बैक्टीरिया। सो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज symbiotic relationship. Clear students? Okay. Now we will talk about पैरासिटिक प्लांट्स। अब हम बात करेंगे पैरासिटिक प्लांट्स की। पैरासिटिक प्लांट्स की बात करें तो क्या है, जैसे पैरासिटिक प्लांट्स भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे अपने होस्ट प्लांट पे या दूसरे लिविंग प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, ओके। कुछ जो होते हैं वो टोटल पैरासाइट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो पार्शियल पैरासाइट होते हैं। पार्शियल पैरासाइट जो होते हैं वो अपनी कुछ रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो टोटल पैरासाइट होती है वो अपनी कंप्लीट रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर डोडर and mistletoe. Okay, so there we have completed about heterotrophic nutrition also, and mode and various types of heterotrophic plant, that is saprophytic plants, insectivorous plants, symbiotic plants and parasitic plants. Okay, now I will come to my mystery question which I have started before the starting of the lecture. Okay, what was that mystery question? I will repeat the story for you. Once there was a lion. He was living in a jungle and a tragedy struck in the jungle. All the plants are died in the jungle and after some time lion also died. Okay students, अब तक आपको इसका आंसर या सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल गया होगा, but I will give you the solution. तो यहाँ पे क्या है, जब जंगल में प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, तो एक सिंपल इक्वेशन से मैं इसको समझाऊंगी। जैसे इक्वेशन क्या है मेरी, नंबर 1 प्लांट्स, रैबिट, फॉक्स एंड लायन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम फूड चेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो एज यू नो रैबिट इज़ लविंग कैरेट्स। रैबिट को कैरेट खानी बहुत पसंद है जो उसे प्लांट से मिलती है। तो रैबिट को कैरेट नहीं मिलेगी तो रैबिट विल डाई। क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर फॉक्स जो होता है अपना न्यूट्रिशन रैबिट से लेता है, रैबिट को खाता है, अगर फॉक्स को रैबिट नहीं मिलेगा तो फॉक्स विल डाई, ठीक है। और अगर जंगल में या फॉरेस्ट में फॉक्स नहीं होंगी, ठीक है, तो लायन जो फॉक्स से अपना न्यूट्रिशन ले रहा था, फूड ले रहा था, ही विल डाई ऑल्सो, ठीक है। तो अगर प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में कहा है, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारी ये जो कंप्लीट फूड चेन है या जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है या जितना भी न्यूट्रिशन साइकिल है वो एंड अप हो जाएगी। We cannot survive without plants because all of we depend directly or indirectly on plants, student. This is all for this lecture and this is your science teacher Mansha. Okay, this is lecture of revision class, nutrition in plants. Okay, we will meet in our next lecture. Till then, stay safe, stay at home and keep learning with me. Thank you.